ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। और किवें वधिया सब? हाँ जी वधिया। हाल मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर खड़ा हूँ जो अपने करियर के लिए भारत छोड़कर विदेश गया था, यानी यूक्रेन गया था। मगर क्या हुआ, फिलहाल मैं उसके घर खड़ा हूँ। सामने मेरे को नजर आ रहे हैं उसकी माता जी खड़े हैं। आंटी जी मुंडा करे हैगा अपना? नहीं जी, खेत च गए। इनका कहना है कि मुंडा खेत गया है, यानी यूक्रेन से आते ही लड़का खेत में काम चला गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जीवन के जो जितने भी साल उसने वहाँ लगाए हैं, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से अपने पैसे बर्बाद करके जो है गया वो लड़का, अब वापस उसी जगह में उस खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर विदेश से लौट कर आया है। हालांकि वो एमबीबीएस का डॉक्टर अभी बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी मम्मी से पूछा तो कितने साल हो गए गए को। मम्मी ने कहा कि साल से ऊपर समय हो गया और लगभग 20 से 25 लाख रुपए जो है वो खर्चा हो गया। यानी वो तो सब कुछ डूब गया। ये भी पूछेंगे कि आगे का उसका जो भविष्य है यूक्रेन में क्या रहेगा। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या कर रहा है वो। ये पीछे की लाइव तस्वीरों में आप देखो भाई, फिलहाल वो अपने खेत में लगा हुआ है लड़का। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। और किवें वधिया सब? हाँ जी वधिया, तुसीं सुनाओ। फिलहाल किसान का बेटा गुरलाल सिंह हमारे साथ है। एक किसान यानी एक किसान जो पूरे साल अपनी फसल की राखी करके उसके बाद जो है फसल बेचता है। ये सोचता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा बेटा है कामयाब हो जाए किसी भी तरह से। तो गुरलाल सिंह के पिताजी ने लगभग अपनी ज़मीन पर जितना भी मतलब लोन लिया हो, चाहे कर्जा कहीं और से लिया हो, कर करा के कुल जुगाड़ करके और जो है अपने बेटे को विदेश यूक्रेन भेजा। और यूक्रेन में जाते ही कुछ समय बाद जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद की जो स्टोरी है वो आपको खुद अपने के लिए वो बताएंगे कि आखिर यूक्रेन के क्या हालात थे उस समय जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बुला दे एक बारी और सारे ने। सत श्री अकाल जी ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋਦਮ ਵੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? 6 ਸਾਲ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 9-10 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਭਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ। ਜੀ, ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੱਜਣਾ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਟੋਟਲ? ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ?
ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨੀਪੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਅਰ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵਧੀਆ ਕਲਾसेस ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ऑनलाइन क्लासें यानी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है। कौन सी आप जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? मेरी यूनिवर्सिटी का नाम बिकोविनियन मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। कहाँ कहाँ थी वो ये? चरनी विच। चरनी। ठीक है, तो मतलब अब जो फिलहाल सिचुएशन क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई इतने टाइम के बाद आपको बुला लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो जो युद्ध है वो चल रहा है लगातार। जी, ऐसा तो उन्होंने अभी तक कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम आपको इस इतने टाइम के बाद वापस बुला लेंगे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता, ये दो सरकारों का, दो गवर्नमेंट्स का चल रहा है, वो उन पर ही है कि मतलब वो कैसे सुलझाव करते हैं इस चीज़ का। तो आपका दिल क्या कहता है, अब आप क्या डॉक्टर बन पाओगे? ये तो हमने कुछ वो पूछ लिया, बाकी अब इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे, अभी तक तो उम्मीद है कि सब कुछ आगे अच्छा होगा। आईलेट्स क्लियर की थी आपने? नहीं, इसके आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, ये study based एक नीट का पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। बाकी यहाँ पे मैंने कोशिश की थी, यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट एडमिशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे आके अपना करियर वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की और हरियाणा की। फिलहाल हरियाणा में और भारत में ही पूरा ये बताइए कि चिकित्सा यानी जो मेडिकल लाइन से जो पढ़ाई है संबंधित, वो कैसी है इंडिया में? जी, यहाँ पे सब कुछ पैसे में सिस्टम चल रहा है अभी तक। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस का हम देख लें कि 20-20 लाख तो डोनेशंस है, आगे 80-80 लाख उनकी फीसेस आगे पहुँच जाती हैं। तो इतना कोई इतनी बड़ी फीसेस और ये कोई छोटा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तो फिर वही बड़े लीडर्स और बड़े डॉक्टर्स जिनके आगे प्राइवेट वो ही करते हैं। जी, तो मतलब आप विदेश जाना इसी मेन रीज़न यही रहा आपका? जी, वहाँ पे एक तो मतलब कि वही है ना कि आपकी फैमिली कितना अफोर्ड कर सकती है, तो मेरे पापा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अफोर्ड कर लेंगे, तो आप वहाँ पे जाके अपनी खुद मेहनत करना, मेहनत मत छोड़ना करनी। सच्चाई तो आपको पता होगा कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए क्या बेचा है, क्या कर्जा लिया है, आप थोड़ा सा बता दोगे हमारे दर्शकों को, ताकि वो सुने और समझे कि भी हाँ सच में ऐसी है सच्चाई। जी, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे पापा हैंडीकैप हैं और उनका एक हाथ नहीं है, वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उन्होंने एक मेरे पापा गवर्नमेंट वो रहे हैं, तो उसी हिसाब से मतलब कि पेंशन वगैरह से घर चल जाता है, और जो फार्म है उससे मेरी फीस वगैरह अफोर्ड होती है। अपने जो है वो कितनी ज़मीन है आपके पास? 8 किलो। 8 किलो। तो जब आप विदेश जा रहे थे तो फैमिली ने कुछ सेल भी की थी? नहीं, सेल ऐसा कुछ नहीं है, या लोन ही कहीं से एडजस्टमेंट किया? नहीं, मतलब कि सारा पहले सेटलमेंट वगैरह कर रखी थी कि मतलब कि आगे मतलब इस लाइन में जाना है,
मेरे पापा डबल एम में है, तो मतलब कि थोड़ा अपना सिस्टम सारा प्लानिंग से चलते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे आगे करवाना जी। तो थैंक यू। गुरलाल सिंह जी ने बताया कि मेरे पिता हैंडीकैप्ड हैं, उसके बावजूद भी मुझे जितनी भी अपनी बचत है, यानी जितना भी पैसा बचाया हुआ था मेरे परिवार ने, वो मुझे सारा का सारा पैसा मुझ पर लगाकर विदेश भेजा। और अब फ़िलहाल जो सिचुएशन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं गुरलाल की, और यूनिवर्सिटी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जल्दी जैसे ये सब कुछ ठीक होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। यही बात है ना जी? जी हाँ जी। तो क्या कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहोगे हरियाणा के बच्चों के लिए, जो जिनकी सोच है ये कि भी हम भी डॉक्टर बने या कुछ और, तो कुछ कहना चाहोगे उनको? जी यही कहना है कि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए ताकि अपने जो इंडिया की कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आएँ और गवर्नमेंट ऑफिस मतलब कि आपको कॉलेज मिले। बाकी 17 लाख से ऊपर हर साल बच्चा पेपर देता है, तो सीट्स तो सारी बहुत कम है, तो इसलिए मतलब कि सबका सपना पूरा नहीं हो पाता। तो कुछ मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मतलब कि बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं। तो मतलब अब वहाँ पे भी इतना रिस्क हो गया है कि मतलब कि बंदा अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। तो आप यहाँ तो वही बात कि आप सपना ही छोटा देखिए और उस पर थोड़ा काम करिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। तो या तो सपना छोटा देखिए या बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। गुरलाल सिंह ने साफ साफ बता दिया है कि आपको ही अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे पढ़कर कीजिए चाहे छोटा सपना देखकर अपना सपना पूरा कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।